ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام رمشا ہے۔ میرا تعلق لاہور سے ہے، جہاں پر میں اپنے ابا اور اپنے چھوٹی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ میری امی کا ہمارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن اس وقت 5 سال کی تھی، جس وقت میری اماں ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میری اماں کے دونوں گردے بری طرح سے خراب ہو گئے تھے۔ ان کا علاج بہت کروانے کی کوشش کی تھی، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا علاج اب اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ ان کو ایک گردے کی ضرورت تھی، اور میری خالہ نے میرے ابا کے کہنے پر اور کچھ اپنی بہن کی محبت میں کچھ ہماری طرف دیکھتے ہوئے اماں کو گردہ دینے کے لیے راضی ہو گئی تھی، اور انہوں نے اپنا ایک گردہ میری اماں کو دے بھی دیا تھا۔ لیکن اس علاج کے بعد بھی میری امی زیادہ عرصہ جی نہیں پائی تھی۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی، اور میں اپنی ماں کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ اور پھر آخرکار میری اماں کو ان ساری تکلیفوں سے نجات مل گئی تھی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی، اور اس طرح چھوٹی سی عمر میں ہی میرے اوپر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ میری دادی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتی تھی، لیکن دادی کا بھی اماں کے بعد 5 سال بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، جس وقت میں 15 سال کی تھی اور میں اسکول میں تھی۔ اس وقت میری دادی بھی ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اماں کے جانے کے بعد اپنا سارا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، اسی لیے اسے میرے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنے کی عادت نہ تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی اسکول میں جایا کرتی تھیں، اور اب جب کہ میرا اسکول ختم ہو گیا تھا اور میں نے کالج آنا شروع کر دیا تھا، تو میری بہن نے میرے بغیر اسکول جانے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ ابا نے اسے بہت سمجھایا تھا، پھر آخرکار وہ ہم لوگوں کی بات مان ہی گئی۔ اپنی چھوٹی بہن کی فکر میں کچھ اس لیے بھی کرتی تھی کیونکہ ایک تو اس کی شکل بالکل میری اماں کے جیسی تھی، اور وہ بھی اماں کی طرح کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس تھی، اس پر چیزیں بہت جلدی اثر انداز ہوتی تھیں، اسی لیے وہ جلد بیمار ہو جاتی۔ میں اور ابا اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ پورے گھر کی جان تھی، کیونکہ پورا دن اس کے بولنے کی اور ہنسنے کی آواز پورے گھر میں سنائی دیتی رہتی۔ میں بالکل بھی اپنی بہن کے جیسی نہیں تھی۔ جہاں میری بہن اتنی شرارتی اور اتنی ہنس مکھ تھی، وہیں پر میں سنجیدہ مزاج تھی، اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ کم عمری ہی میں میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی تھیں، اور میں نے بہت اچھے طریقے سے ان ذمہ داریوں کو سنبھال بھی لیا تھا۔ میری دادی نے مجھے ساری گھرداری اچھے طریقے سے سکھائی تھی۔ کھانے بنانے سے لے کر ہر چیز انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے سکھا دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم لوگوں کو اب زیادہ مشکل نہ ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے میرے ابا کو دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا تھا، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ سب لوگوں کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ ایک تو میرے ابا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایسے میں اگر میرے ابا دوسری شادی کر لیں گے تو ہو سکتا ہے انہیں بیٹا بھی مل جائے۔ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ یہ دونوں بیٹیاں ہی ان کی کل کائنات ہیں، ایسے میں انہیں نہ تو بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوسری شادی کی۔ ابا کی یہی محبت تھی جو ہمیں اماں کی کمی زیادہ محسوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اور میری بہن نے بھی اپنا اسکول ختم کر لیا تھا۔ پہلے جو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی تھی، اب تھوڑی بہت سمجھدار ہو رہی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں اسے گھرداری سکھا دوں، کیونکہ میرے ابا کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی میری شادی کروا دیں گے، لیکن ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں ابا کو اور اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، مگر ابا کا کہنا تھا کہ میری اماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ جلدی میری شادی کروا دیں، اسی لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اسی لیے ابا کا ارادہ تھا کہ اب وہ کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر مجھے رخصت کر دیں گے۔ میں نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ جس وقت میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ میری اس سے کبھی زیادہ بات چیت تو نہ ہوئی تھی، لیکن کبھی کبھار اس سے بات ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ لیکن 1-2 بار باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ میں نے یہ سارے معاملات ابا پر چھوڑے ہوئے تھے۔ لیکن وہ لڑکا برا نہیں تھا، میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ وہ ایک اچھا
اور शरीफ घर का था। उसामा से मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही हुई थी और उस वक्त वो मुझे अच्छा लगा था। वो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग था। वो अपने काम से काम रखने वाला और इंतहाई लायक था। मुझे यकीन था कि वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा और किसी मकाम पर पहुँच कर दिखाएगा। दिन इसी तरह से गुजरे थे और फिर एक दिन उसने अपने दिल की बात मुझे बता दी। उसका कहना था कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसका यही कहना था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई मुकम्मल होगी और उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने घर वालों को मेरे घर भेज देगा। मैं खुश हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे अब्बा कभी भी इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने जिस तरह से हमारी परवरिश की थी और जितनी मोहब्बत वो हम दोनों बहनों से करते थे, वो हमारी पसंद को अहमियत देते थे। और मैं जानती थी कि अब्बा कभी भी उसामा को इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बुराई नहीं थी जिसको वजह बनाकर उसे इनकार किया जाता। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब पढ़ाई मुकम्मल होने के 1 महीना पहले ही उसने यूनिवर्सिटी आना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। मैं जिससे भी उसके बारे में पूछती थी तो सब लोगों का यही कहना होता था कि किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। शुरू में तो सब लोग यही कहते थे कि वो बीमार है और चंद दिनों तक दोबारा आने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शादी से पहले ज़्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं था। जब हमारा रिश्ता हो जाता तो ही हम लोगों में ज़्यादा बातचीत होती तो बेहतर था। इसीलिए ना तो मैंने उसका नंबर लिया था और ना ही कभी मैंने उसे फ़ोन किया था। यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात होती थी और थोड़ी बातचीत हो जाती थी, लेकिन अब उसने यूनिवर्सिटी आना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था। मैं उसका इंतज़ार करती थी, लेकिन रोज़ाना ही मेरा इंतज़ार रायगां जाता। इसी तरह से 1 हफ़्ता गुजरा था और फिर इसी तरह 2 हफ़्ते गुजरे थे और उसका कुछ अता पता नहीं था। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा था, सबका यही कहना था कि किसी का भी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। उसका नंबर बंद था। कुछ लोगों का कहना था कि वो शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला गया है और कुछ लोगों का कहना था कि वो मुल्क से बाहर चला गया है। सब लोगों की अलग अलग बातें थी। उसके एक दोस्त ने मुझे बताया था कि उसके अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया है और वो मुल्क से बाहर चला गया है। मैं बहुत परेशान थी। ना तो मुझे उसके घर का पता था और ना ही मैं उसके किसी ऐसे दोस्त को जानती थी जो उसके बारे में हकीकत बता सकता। मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन वो ना आया। महीना इसी तरह गुजरा था और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाती रहती थी और लोगों से उसके बारे में पूछती थी, मगर अभी तक किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। सबका यही कहना था कि उस दिन के बाद से वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आया और अब मुझे यकीन आ गया था कि वो मुल्क से बाहर चला गया है, क्योंकि अगर यहाँ होता तो कभी तो मेरा उससे सामना होता। मैं यही समझती थी कि शायद उसने मेरे साथ झूठ बोला था और मोहब्बत का मजाक किया था। वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गया था। यकीनन या तो वो किसी दूसरे शहर चला गया था या फिर वो मुल्क से बाहर चला गया था। इसीलिए तो वो वापस नहीं आया था। और जो उसकी मोहब्बत के दावे थे, यकीनन वो झूठे थे। वो भी बाकी लड़कों की तरह निकला था। मैं उसका इंतज़ार अब किस बुनियाद पर करती? उसके आने का कोई इम्कान नहीं था और ना ही उसने मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा था। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और किसके लिए जा रहा है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। ऐसे में वो मुझसे शादी का वादा करके चला गया और अभी तक वापस नहीं आया था। और ना तो मैं उस लड़के के घर के बारे में कुछ जानती थी और ना ही उसका नंबर मेरे पास था, इसीलिए खामोश हो गई थी। उसे भूल जाना मेरे बस में तो नहीं था, लेकिन मुझे ये काम करना था, क्योंकि उसके आने की मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। यकीनन उसने मुझे भुला दिया था, इसीलिए मैं भी उसे भुलाकर अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। और फिर इसी तरह थोड़े ही दिनों में मेरे अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। जिसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका अपना कारोबार था और अच्छा अमीर घर था। अब्बा का कहना था कि रिश्ता अच्छा है। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अकेला अपने घर में रहता था। ऐसे में मेरे अब्बा को ये रिश्ता हर लिहाज से मेरे लिए मुनासिब लगा था और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। उसामा से मैं शादी के ख्वाब देखती थी। अब उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे अब्बा किसी से भी मेरी शादी करवा देते। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
थोड़े ही दिनों में मेरी शादी तय हो गई थी। मेरी छोटी बहन कॉलेज जाने लगी थी और घर की जिम्मेदारी भी संभालने लगी थी। मेरी शादी से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब्बा भी खुश थे और उन दोनों को खुश देखकर मैं मुतमईन थी। मैंने उस इंसान को दिल से निकाल दिया था जो बीच रास्ते में छोड़कर मुझे चला गया था। और इसी तरह से थोड़े ही दिनों में मैं शादी करके रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि सास ससुर का तो काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो गया था। जबकि यहाँ आकर मुझे एक अनोखी बात मालूम हुई थी, और वो ये थी, मेरे शौहर का कहना था कि उसका एक छोटा भाई भी है, यानी कि मेरा देवर, जो कि बीमार है। मेरे शौहर का कहना था कि उसके छोटे भाई को दिमाग का मसला है और उसे आए दिन दौरे पड़ते रहते हैं, इसीलिए उसे छत पर बने हुए स्टोर रूम में बंद किया गया था। इसीलिए मेरे शौहर ने मुझे छत पर जाने से सख्ती से मना किया था। उसका कहना था कि मैं नीचे घर में जिस तरह से मर्जी रहूं, लेकिन छत पर मैं कभी भी न जाऊं और ना ही उस कमरे में कभी भी जाऊं, क्योंकि उसके भाई का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। इस बात से मैं डर गई थी, लेकिन उसका कहना था कि उसने उसे कमरे में बंद किया हुआ है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता। मुझे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हुई थी और यही कहा था कि उसने हम लोगों को ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसका कहना था कि उसने मेरे अब्बा को ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर मेरे अब्बा को ये बात मालूम हो जाती तो शायद वो इस रिश्ते से इनकार कर देते। मेरे शौहर ने मुझसे यही कहा था कि मैं भी उस बात के बारे में किसी से जिक्र ना करूं और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दूं। मुझे उसने इसलिए बताया था ताकि मैं ऊपर ना जाऊं। अपने शौहर की बात मानते हुए मैं चुप हो गई थी और मैंने कभी भी छत पर जाने की गलती नहीं की थी। हालांकि मुझे छत पर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कोई बुरी तरह से चीख रहा है और मदद के लिए किसी को बुला रहा है। जबकि जैसा कि मेरे शौहर ने कहा था कि उसका भाई पागल है, इसीलिए मैं ऊपर जाने की गलती नहीं करती थी। उसका क्या भरोसा था कि कभी भी किसी पर भी हमला कर दे। मेरा शौहर खुद ही ऊपर जाता था और अपने भाई को खाना वगैरह खिला देता था। वही उसका ख्याल रखता था। ना तो मैं कभी उसके साथ ऊपर गई थी और ना ही वो अपने भाई को कभी नीचे लेकर आया था। मैंने अपने शौहर से 1-2 मरतबा यही कहा था कि वो उसे पागल खाने भिजवा सकता है, वहाँ पर उसका इलाज हो और वो ठीक हो जाए। जबकि मेरे शौहर का कहना था उसने बहुत मरतबा उसका इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा है इसीलिए उसका इलाज मुमकिन नहीं है। और पागल खाने वाले उसे पागल खाने में रखने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर वो अपने भाई को ऐसी जगह पर रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से वादा किया था कि वो अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। इसीलिए उसने उसे घर में रखा हुआ था। मेरे शौहर ने मुझसे यही कहा था कि मुझे डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भाई ऊपर कमरे में है और उसने उसे वहाँ पर बंद किया हुआ है। ऐसे में वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं चुप हो गई थी और मैंने कुछ ना कहा। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा शौहर अपने काम पर गया हुआ था, जबकि मैं घर के सहन में काम काज में मसरूफ़ थी। अचानक से ऊपर वाले कमरे से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं, शोर शराबे की, जैसे कोई बुरी तरह से तड़प रहा है और मदद के लिए किसी को बुला रहा है। उस दिन अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया था कि मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे ऊपर जाने से सख्ती से मना किया था, लेकिन वो दर्द भरी चीखों पुकार सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था और ना चाहते हुए भी मैंने ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। कोई यही कह रहा था कि उसे इस कैद से निकाला जाए। मैंने यही सोचा था कि ऊपर जाकर एक मर्तबा देखना चाहिए। मैं डरते हुए ऊपर आई और एकदम से दरवाज़ा खोला तो जैसे जलजला ही आ गया हो। जब मेरी नज़र सामने मौजूद शख्स पर पड़ी थी, दोबारा पलटना भूल गई। मैं उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी। ये कोई और नहीं बल्कि उसामा ही था, और वो ऐसी हालत में यहाँ पर मौजूद था। उसे बुरी तरह से जंजीरों से बांधा गया था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो भी मुझे वहाँ पर देखकर हैरान था और उसे इस हालत में देखते हुए ना चाहते हुए भी मैं उसके पास पहुँची थी। जब उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा तो मैं हैरान रह गई थी कि अगर वाकई में वो पागल था तो उसे मेरा नाम कैसे याद था। अगर वो पागल था तो अब तक वो मुझे भूल चुका होता। मैं उसके पास बैठ गई। जब उसका कहना था कि मैं फ़ौरन यहाँ से चली जाऊँ वरना उसका भाई मुझे भी यहाँ पर कैद कर देगा और फिर सारी ज़िंदगी मैं भी उसी की तरह यहाँ पर तड़प तड़प कर गुजार दूँगी।
मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि मेरा शौहर उसामा का बड़ा भाई था। उसका मतलब ये था कि मेरा देवर कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और मैं फ़ौरन से छत से नीचे आ गई थी, क्योंकि मेरा शौहर घर वापस आ चुका था। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया था कि उसामा पागल नहीं था, और मैं अब पूरा सच जानना चाहती थी कि वो वहाँ पर किस लिए कैद था और ये सब कुछ क्या हो रहा था। अचानक से वो कहाँ चला गया था, मैंने उसे कितना तलाश किया था और कितने लोगों से उसके बारे में पूछा था। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। पूरी रात यही सोचते हुए मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इंतज़ार में थी कि मेरा शौहर दोबारा सुबह घर से बाहर जाए और मैं दोबारा जाकर अपने हर सवाल का जवाब उससे मांगूं। मेरा शौहर जैसे ही घर से निकला था तो मैंने छत की तरफ रुख किया, और वहाँ जाकर जब मैंने उसामा से पूछा और जो हकीकत उसने मुझे बताई थी उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मैंने उसे बता दिया था कि उसके चले जाने के बाद मेरे अब्बा ने उसके बड़े भाई से मेरी शादी करवा दी है, जबकि मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि वो इसका बड़ा भाई है। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका कहना था कि वो बहुत खुश था और वो मुझसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी कि उस दिन करता था। उसने अपने घर में अपनी माँ से इस बारे में बात भी की थी और उसकी माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। 1 महीना बाकी था और 1 महीने के बाद उसे उम्मीद थी कि इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई में सबसे अच्छा था। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया था जो सब कुछ बहा कर ले गया था। एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों का इंतकाल हो गया था, और उसके माँ बाप का इंतकाल के बाद उनकी सारी जायदाद उसामा के नाम कर दी गई थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसका सगा भाई नहीं था, उसकी पुप्पो का बेटा था, यानी कि उसका कज़न था। और पुप्पो के इंतकाल के बाद उसके अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी और इसे इसके माँ बाप ने गोद ले लिया था और अपना बेटा बनाकर इसे पाल लिया था। और क्योंकि वो इसका सगा भाई नहीं था, इसीलिए सारी दौलत कानूनी तौर पर उसामा के नाम कर दी गई थी, जबकि उसका कहना था कि वो अपने भाई को उसका हिस्सा दे देगा। लेकिन उसके भाई को ये मंजूर नहीं था। उसने तो अपने दिल ही दिल में कुछ और सोच रखा था। उसामा का कहना था कि एक रात इसी तरह से उसके भाई ने उसे कमरे में लाकर बंद कर दिया था, और उस रात के बाद से आज तक वो इसी कमरे में बंद था। उसे इस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जबकि उसका भाई इसे यहीं पर कभी कभार खाना दे देता था और कभी कभार उसे भूखा रखता था और उस पर जुल्म करता था ताकि वो जल्दी मर जाए। सब लोगों से बाहर उसने यही कहा था कि वो उसे पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया गया है, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो इस कमरे में कैद था और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके सौतेले भाई ने दौलत की खातिर ये सब कुछ किया था और किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। इसके सभी दोस्तों से ये कह दिया गया था कि वो मुल्क से बाहर पढ़ाई के लिए चला गया है, जबकि हकीकत में वो इसी घर में इसी कमरे में 2 साल से कैद था। जबकि उसके वालिदैन की सारी जायदाद पर उसके सौतेले भाई ने खुद कब्जा जमा लिया था। उसका मुस्तकबिल, उसका हाल, सब कुछ उसके भाई ने बर्बाद करके रख दिया था, और आज वो इस हाल में मेरे सामने मौजूद था। जबकि उसके भाई ने घर भी तब्दील कर लिया था और यहाँ पर आसपास के लोगों को उसने यही कहा था कि इसका भाई पागल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए तो पागल समझकर कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आता था। इसकी चीखों पुकार सुनकर लोग नज़रअंदाज कर देते थे, ये सोचकर कि वो पागल है। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं उससे क्या कहती? मैं तो उसका इंतज़ार भी ना कर सकी थी। मैंने तो उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। जिससे शादी की थी वो भी उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मज़ीद अब मैं उसे इस किस्म की ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगी। मैंने उससे यही कहा था कि मैं उसे इस घर से निकाल सकती हूँ और यहाँ से जाकर वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार ले। लेकिन उसका कहना था कि अगर वो इस घर से चला गया तो पीछे से उसका भाई मुझे जान से मार देगा, क्योंकि वो शख्स दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। और अगर उसामा यहाँ से चला जाता और उसे ये मालूम हो जाता कि मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है, तो यकीनन वो मुझे जान से मार देता। वो अकेला इस घर से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मैं भी इस किस्म के इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी कि जिसने अपने ही भाई के साथ इतना सब कुछ किया हो। वो माँ बाप जिन्होंने इसे अपना बेटा बनाकर पाला था और इसे पढ़ाया लिखाया था, उसी के बेटे के साथ इसने ये सब कुछ किया था।
اور پھر اگلے ہی دن موقع دیکھ کر ہم دونوں اس گھر سے فرار ہو گئے تھے۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی تھی اور گھر آ کر میں نے اپنا ابا کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میرے ابا یہ بات سن کر کافی پریشان ہو گئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی، جبکہ اسامہ نے بھی اپنے بھائی کو جیل بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس نے اسے 2 سال تک اپنی قید میں رکھا تھا اور دھوکے سے اس کی ساری جائیداد خود لے لی تھی۔ اس کے بھائی کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، جبکہ اسامہ کو اس کی ساری جائیداد واپس مل گئی تھی، اور اب وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ کر رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی جو ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی مکمل کر لی تھی، اور اب وہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آتا تھا، لیکن میں پھر بھی اس سے ملنے کے لیے باہر نہیں جاتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، اور پھر میری عدت مکمل ہو گئی تھی۔ میرے ابا کا کہنا تھا کہ اب وہ میری شادی کے بارے میں سوچیں گے، لیکن مجھے اب کسی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ جو کچھ میری زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، جبکہ اسامہ کا کہنا تھا کہ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک تو میں نے اس کا انتظار نہیں کیا تھا اور کسی اور سے شادی کر لی تھی، اور دوسرا جس سے شادی کی تھی وہ بھی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ قسمت میں شاید یہی سب کچھ لکھا تھا، اگر میں اس کے گھر نہ جاتی تو اسے اس قید سے رہائی کیسے ملتی؟ وہ ساری زندگی اسی کمرے میں تڑپ تڑپ کر گزار دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہماری یہی بہتری چھپی تھی۔ میں نے اس گھر میں جانا تھا، اسے اس قید سے رہائی دلوانی تھی، تو پھر ہی تو اس نے مجھے ملنا تھا۔ اگر میں وہاں جاتی ہی نہ تو وہ باہر کیسے آتا؟ آج اگر وہ اچھی زندگی گزار رہا تو اللہ کے بعد میں نے اس کی مدد کی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا میں اسے بھول جاؤں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم لوگ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر میں نے بھی اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ دیر سے ہی صحیح مجھے میری محبت ملنے والی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں شادی کر کے دوبارہ رخصت ہو کر اپنے نئے گھر چلی گئی تھی، جو کہ پہلے والے گھر سے کافی بڑا اور کافی خوبصورت تھا۔ میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، ورنہ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ آج کے بعد شاید میں اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ انسان دوبارہ سے میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح سے وہ مجھے دوبارہ سے مل جائے گا۔ اس بات پر میں جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم تھا، اور میں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ جب کوئی انسان ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اور کسی انسان سے ملنا ہماری قسمت میں لکھا ہو تو وہ انسان خود بخود ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر راستے تو اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتا ہے۔ اگر اس نے ہمیں کسی سے ملوانا ہو تو راستے وہ خود بخود بنا دیتا ہے۔ اس کے بھائی کو جیل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگے تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ زندگی میں جتنے بھی غم تھے سب ختم ہو گئے تھے۔ 2 سال کے لیے اس نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن اسے اپنے اللہ پر یقین تھا، اور اسی یقین نے آج اسے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو اس نے کچھ سال پہلے کھو دیا تھا۔ اب ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی خوشی اور آنی تھی، اور وہ ہمارا بیٹا تھا، جس میں میری اور اسامہ ہم دونوں کی جان بستی تھی۔ وہ ہماری محبت کی نشانی تھی۔ جتنی محبت اسامہ مجھ سے کرتا تھا اتنی ہی ہمارے بیٹے سے بھی کرتا تھا۔ یہی بات مجھے سب سے زیادہ خوشی اور سکون دیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔